Welcome to Masala Buzz. We bring to you the latest happenings from the world of showbiz. Today's top stories are: Aditya Roy Kapoor will soon come up with his own music album. Will Mahesh Bhatt direct a film again for Alia Bhatt? Why is Amitabh Bachchan proud of Abhishek Bachchan? Aditya Roy Kapoor confessed that he has always been interested in music. He wants to cut an album and people keep telling him to bring it out soon. But he needs to spend time working on that. Though he's quite decent with his guitar playing, he will need people for his music arrangements, background, etc. He composes his own music and writes his own songs, so putting it together is not a problem. Currently, he is shooting for Dawat-e-Ishq, so he doesn't have the time to put it together, but he will definitely do so next year, though he's not sure whether it will be a single or a compilation of all kinds of songs. खुद से है या खुदा से इस पल मेरी लड़ाई किस मोड़ पे है लाई आशिकी. Aditya says when he is writing the songs, they just flow. He doesn't know if it will be a love album. It could be anything that inspires him. He can have any random thought and he just scribbles that down. He writes on everything from love to life and philosophy. He plays tunes on his guitar and records it. He has not had any formal training and wants to rope in the best musicians to help him put together his album. क्या है ना, मेरा मूड नहीं है जाने का. Alia Bhatt won many a hearts with her film Student of the Year. Though she didn't have any release this year, she does have quite a few projects lined up for next year. So the youngest and newest entrant from the Bhatt camp wants her father to direct her in a film. She says she wants to be directed by Mahesh Bhatt, but she doesn't think he will ever direct again. Mahesh Bhatt has directed films like Arth, Zakham and Kartoos. He quit directing and completely focuses on production now, along with his brother Mukesh Bhatt. Alia wants to work for her home company, Vishesh Films. She is not intimidated by her father. She is only intimidated by his intelligence. He may be a lot older than her, but at heart, he is as young as she is. At home, he is more energetic than all of them. So with no releases this year, Alia says it has been a pretty tumultuous year for her. It was a decisive year. It was a year that she would remember mainly for shooting Highway. Sometimes she forgets she is just one film old. She is working on 3 projects. She has 3 films with Dharma Productions. दो चोरियां, चोर दोनों बार हिंदी में लिख के गया, जोकर का मास्क छोड़ के. अगर उसे पकड़ना है तो हम उससे चोरी करवाएंगे. फिर से we make him rob again. Dhoom 3, starring Amir Khan, Katrina Kaif, Abhishek Bachchan and Uday Chopra, has smashed all the records and crossed the 100 crore mark in the first weekend. And this has made Amitabh Bachchan very proud. And why not? After all, the film is Abhishek's only film that has broken records, right? We don't want to be mean here, but it's a fact. Anyway, Senior Bachchan is a proud father today and he expressed his happiness on his Facebook page saying that Dhoom 3 collects 100 plus crore in the first weekend itself. He found that to be incredible and just out of the park. Nearest to this number was 80 crore for Chennai Express, and this little fellow Abhishek is now in it, and Big B never imagined this would be. Well, this is certainly a very sweet thing coming from a father's mouth for his son. Enough! नौकर हैं आप जनता के और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम. Hi, this is Vivek Oberoi.
wishing all the viewers of Bollywood Masala all the very best. आप बहुत सेल लगते हैं सर, तो ये सारी चीजें आपके मन में कैसे आती हैं? First time ever watching you doing a stunt. सबसे पहले तो मैं कलर्स की टीम और मिस्टर राज नायक का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं होस्ट करने जा रहा हूं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्शन शो. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. थैंक यू कलर्स. मेरी शक्ल देखिए आपको लगता है कि मैं कुछ और कर सकता हूँ? कोई डांस रियलिटी शो कर सकता हूँ मैं? यही आता है मुझे. इसकी वजह से मेरा नाम है और मैं इसकी वजह से बदनाम भी हूँ. तो ये प्रेशर हमेशा रहता है मेरे सर पे. जब गोलमाल बनी और गोलमाल रिटर्न्स बना रहे थे तो सबने यही पूछा कि ये चलेगी. जब रिटर्न्स के बाद गोलमाल 3 बनाई तो लोगों ने यही कहा कि क्या अब ये चलेगी. उसके बाद जब एक एक्शन फिल्म सिंघम बनाई तो सबने यही कहा कि कॉमेडी बनाते हो यार, एक्शन चलेगा. और फिर जब शाहरुख खान के साथ चेन्नई एक्सप्रेस बनाई तो फिर यही सवाल था कि ये चलेगा. और यही सवाल आज आपने मुझसे फिर पूछा है. सो इसका जवाब मैं यही दूंगा कि ये कितने करोड़ कमाएगा टेलीविजन पे ये तो नहीं कह सकता मैं, बट एक दिल में यकीन है क्योंकि हम एक ईमानदारी से एक काम करने जा रहे हैं, एक शो करने जा रहे हैं. कितने करोड़ कमाते ये तो पता नहीं, लेकिन करोड़ों दिलों की जगह जरूर बना लेंगे. देखिए होता क्या है कि हमारी कामयाबी को डर रोकता है. अगर मैंने ये जॉब छोड़ा और मैंने कुछ और किया तो क्या मैं कामयाब होगा, इस बात का डर. अगर मैं डायरेक्टर हूँ और ये फिल्म बनाकर मैं कोई और फिल्म बना रहा हूँ तो ये चलेगी, इस बात का डर. क्या मैं फोटोग्राफर से कैमरामैन बन जाऊँ तो मैं सक्सेसफुल रहूँगा कि नहीं, इस बात का डर. क्या मैं इस चैनल से उस चैनल में शिफ्ट हो जाऊँ बड़ी पोस्ट पे और मैं कामयाब होगा कि नहीं, इस बात का डर. सो ये जो ब्लॉक है ये हमारी कामयाबी को रोकता है. एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्लॉकबस्टर, दैट वी आर गोइंग टू बर्स्ट दिस ब्लॉक ऑफ डर. ये सितारे ही हैं, कई सारे हैं इनफैक्ट, और इनको मैं आज यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आप सबके सामने. एक साथ नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे हैं, इसलिए ब्लॉक्स में लेके आऊँगा इनको. और मैं चाहूँगा कि इनका इंट्रोडक्शन एवी से किया जाए. सो कैन वी हैव द एवी प्लीज. सुपर लंबा जैसे बिजली का खंबा कोई रॉक, सामने इनके आकर बड़े बड़े दुश्मनों को लगता है शॉक. निकितिन धी लाखों लेडीज का भेजा सटका, डांस से इनको है बेइंतहा प्यार. अब एक्शन का भी चढ़ा है बुखार. सलमान यूसुफ खान भरा है, एक्टिंग हो या मॉडलिंग, जो करती हैं नाम कमाती है. अब देखें खतरों के इस मंजर में क्या रंग दिखाती है. मुग्धा गोडसे के ब्लॉकबस्टर खेल में क्या होगा असर. द वन एंड ओनली गौहर खान. खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी. खिलाड़ी. तो ये है हमारे डर के ब्लॉकबस्टर के. अब सारे जहां को दिखाएंगे कि लव में भी होता है असली जिगर. कुशाल टंडन एक्शन की सुपर हीरो, ये फीमेल है गीता टंडन. की लड़की अब एक्शन हीरोइन का रोल निभाएगी. माही विच गुल कमाल, क्या डर का भी इनके सामने होगा बुरा हाल. रजनीश दुग्गल,
So this is our second batch. Kushal Tandon, Rajneesh Duggal and Geeta. कोई डर का खौफनाक साया, इनके आगे कोई पानी भी नहीं मांगता। दयानंद शेट्टी एक्शन भरे अजीब और गरीब खेल में भी एक परफेक्ट फिट है। रणवीर शौरी खतरों के खेल को रंगीन बनाएंगी। रोशेल राव देखिए यहाँ कितने जलवे दिखाएंगी। पूजा गौर Actually, the team wanted us together, and it's been great that we're working with colors, and that's one great thing we're working with Mr. Rohit Shetty. I mean, I always see whenever I work with like series movies, Flowers are Flying, मेरे दिमाग में आया कि यार अच्छा चल करते हैं यार, हम गाड़ी में उड़ेंगे. So yesterday we shot with him, and it was a very nice shoot. And I love him, I love his direction, so it's great sharing screen space with him. Actually, मुझे बोला जाता है कि मैं बहुत बोलती हूँ, तो मैं I let him go first. But हाँ, they say that all talk and no action. लेकिन I'm here कि मैं अपना action prove करूँ, और एक तो खतरा होता ही है, दो हो तो और भी ज़्यादा खतरा होता है, तो that's why we're together. इनका राज तो खैर सभी जानते हैं, दया को सब लोग जानते हैं, बट जहाँ तक इनको हंसाने की बात है, मुझे शो पे इसीलिए लाया गया है। तो आप अगले 20 एपिसोड जो देखेंगे उसमें कोशिश मेरी यही होगी कि आहिस्ता आहिस्ता 20वें एपिसोड तक दया खूब मतलब हाँ हंसेंगे, जोर लगा के हंसेंगे। खिलाड़ी ये तो वही बात होगी कि शेर के मुंह में हाथ डालने से पहले उनको बोलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। Raj sir, welcome. I think I want to say a few things. First of all, Rohit, thank you very much. ये इतने आसानी से नहीं माने, इनको मनाना पड़ा, but thank you very much for agreeing and being part of खतरों का खिलाड़ी. And to all of you, wish you all the very best. Tomorrow night you're flying, right? कल परसों केप टाउन जा रहे हैं. Wish you all the very best. And जैसे the one person who doesn't like to come on stage, I would like to acknowledge her. वो हमारी प्रोग्रामिंग की हेड है. जितने भी हमारे नॉन फिक्शन फॉर्मेट्स आपने देखा है इस साल, भले झलक दिखला जा हो, इंडियाज़ गॉट टैलेंट हो, बिग बॉस हो, ओके, मनीषा शर्मा सामने बैठी है, वो शर्माती है स्टेज पर आने, बट आधे शो हमारे उसके बिना होता नहीं. सो थैंक यू मनीषा. ज़्यादा स्टंट्स होंगे, और हमेशा जब हम कोई नया शो करते हैं या वही शो रिपीट करते हैं, हर साल सोचते हैं कि कुछ नया क्या करें, इसको स्केल अप कैसा करें. एंड आई कैन एश्योर यू दैट खतरों का खिलाड़ी दिस ईयर विल बी खतरों का खिलाड़ी लाइक यू नेवर सीन बिफोर. जिन्होंने भी अपने सवाल सोच के रखे हुए हैं, तैयार रखिए. माइक आपके पास से आया हो. I'm sure it's doing the rounds. Well, we as Endemol have only about 2 or 3 hubs of Fear Factor where we are most comfortable. And in South Africa, it's almost a home territory because we've pretty much produced all the seasons of Fear Factor there. And like I said, safety and security is of paramount concern. So we wanted to go back to a country that we're most comfortable with.
ऑडियंस का कौन फेवरेट होता है ये इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए तो सब बराबर है, कोई ऐसा नहीं कि कोई एक फेवरेट है। वहाँ जाएंगे फिर देखते हैं। एज आई टोल्ड अर्लियर, पहले भी मैंने टेलीविजन किया है, बट ये एक ऐसा शो था जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और आई थिंक जब कलर्स और राज एंड मनीषा दे केम टू मी, सो आई सेड कि या व्हाई नॉट। एंड बात रही डिफिकल्टी की, तो डिफिकल्टी तो हर जगह पर है। सवाल ये होता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें तो कामयाबी जरूर मिलती है। You want to know what's going to be different? The stunts are going to be more. The fact that we have a new host, okay, that's different. And a lot of things like, you know, we don't want to let the cat out of the bag. It's better you wait and watch it, you stop not watch it. But there are lots of things that we are going to do differently this year, all in terms of number of stunts, in terms of the stunts itself. And you will see some twists and turns to the whole show format. ऐसा नहीं है, हम देखो whenever we do shows, we decide who we think will be the best person for that role. We've done with Akshay and he's done a fantastic job. But we wanted somebody new. जैसे फिल्म कास्ट करते हैं तो सोचते हैं कि 2 फिल्म 3 फिल्म के बाद नया हीरो आ जाए। तो and when we started looking at all the stars, शुरुआत तो फिल्म स्टार से होती है, but we've experimented in the past only when we've been confident. You've seen Karan Johar, we brought him on Jhalak Dikhla Ja, India's Got Talent has been extremely successful. Rohit Shetty has been synonymous with stunts, and you see the movies that he's produced. And we felt that he's got great television presence, he's natural as it comes, and he understands stunts. What better name we could think of? And he's produced some of the biggest blockbusters the last 2 years. He was our natural choice. He was our first choice actually. And it took a little time to convince him, that's a different matter. But he was our first choice, and I remember Deepak, Manisha and me having a debate saying, should we do the show if Rohit says no, or should we wait till he agrees? And I think we waited till he agreed. कोई एक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया है, एक तो अजय देवगन एंड शाहरुख खान, और जिनके साथ मैंने काम नहीं किया, मतलब किया है जब मैं असिस्टेंट था, एक आध एक्शन सीक्वेंस किया है मैंने खिलाड़ी 786 अक्षय के साथ। सो इवन अक्षय वो भी कोई भी स्टंट कर सकता है, मीडिया को जवाब दे देगा। नहीं ऐसा नहीं है यार, मतलब सोचा नहीं है इसके बारे में, बिकॉज मेरे डैड एक एक्शन डायरेक्टर थे, मेरी मॉम स्टंट आर्टिस्ट रही है, बचपन से घर में माहौल ऐसा रहा। सो ऑब्वियसली कोई ना कोई फियर होगा, जब सामने आएगा और डरूंगा तो रियलाइज होगा कि हाँ इस चीज़ का फियर है। बट जो ट्रेनिंग हमें दी गई है, जब मैं वीरू देवगन जी के साथ भी काम किया करता था कि डर पे जीत हासिल करना बहुत जरूरी है, और वो मतलब ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध बस कूद पड़े, यू हैव टू गेट ट्रेन फॉर इट। सो इट्स ऑल अबाउट ट्रेन एंड अनट्रेन। और कुछ नहीं होता है लाइफ में कि आप लोगों को देखते हैं कि वो स्काई डाइविंग कर रहे हैं या वो जंप कर रहे हैं, तो या स्विमिंग पूल पे बहुत ज़्यादा लैप्स ले रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग, नथिंग एल्स। सच पूछिए तो इसलिए नहीं क्योंकि अब मैं ये शो कर रहा हूँ, बट इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट शोज। मेरे दिल के बहुत करीब था ये शो, मतलब मैं देखता था। अगर आप मुझे पूछेंगे कौन से सीजन में क्या हुआ था, आई कैन टेल यू, बिकॉज मे बी बिकॉज एक्शन इज इन माई ब्लड। सो नहीं, सवाल ये था कि जब ये लोग आए तो एक ही जैसे फियर आप कहते हैं कि ये था कि मैं उस काबिल हूँ कि नहीं। फिर जब मैंने फॉर्मेट देखा जो कि बिल्कुल नया है, सो आई थॉट कि या व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ब्लेंड इसलिए करते हैं, और मैं हमेशा यही जवाब देता हूँ कि एक्शन और कॉमेडी जब मिलती है तो एक कमाल का एंटरटेनमेंट होता है। सो इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। इस शो में भी वही होगा कि सिर्फ स्टंट्स नहीं, वी विल ट्राई टू एंटरटेन यू एंड वी विल एंटरटेन यू फॉर श्योर। और बात रही कि मिस्टर राज नायक की मैं कैसे कन्विंस हुआ, एज आई टोल्ड यू कि फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। जब आप ये शो देखेंगे तो ऑब्वियसली स्टंट्स है, बट साथ ही साथ बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी है। फर्स्ट, we have to take it to a different level altogether, because I think this is the biggest show in India on television. So we have to take it, it's a responsibility, and we will take it to a different level. Secondly, we want to entertain. Through action, through whatever you say, comedy, humor, emotions, we want to entertain the audience, and we will do that. I promise you.
हाँ, अभी चेन्नई एक्सप्रेस के बाद मैं खतरों का खिलाड़ी बनने वाला हूँ, जिसे कहते हैं डर का ब्लॉकबस्टर। सो देखते हैं, लोगों को तंगबली तो अच्छा लगा था, अब देखते हैं निकेतन धीर अच्छा लगता है कि नहीं। नॉट एट ऑल, वो ही डिजर्व्स द खिलाड़ी टैग। हम बड़े हुए हैं उन्हें देखते हुए, एंड आई स्टिल थिंक ही इज़ अ खिलाड़ी। आई एम जस्ट लुकिंग टू हैव फन एंड एन्जॉय द एडवेंचर एंड द राइड, एंड आई एम गोइंग टू बी माई सेल्फ। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मैं ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं देता, आता नहीं पब्लिक में, so this is a way for them to get to know me also. Otherwise they only see me on screen. तो यही आशा करता हूँ कि लोगों को अच्छा लगे. Yes, you can say that I have not done an all-out action role so far, but with this I'm hoping that I can send a signal out to filmmakers that I am keen to do action and stunt-oriented roles as well. Completely new for me क्योंकि ये TV है और I have not done TV before, and this Fear Factor is a show which is really exciting. There's adventure, there is everything excitement filled together, and I'm always used to watch this show since childhood, and I wanted to be a part of it, and this time they offered me and I was like, let's go face my fears. And there is a major part because I have worked with Rohit, and I know his temperament and how the set atmosphere will be, so I know it's not going to be very difficult. Yes, this is Dar Ka Blockbuster, and we're going to have a lot of fun. I'm looking at खतरों के खिलाड़ी डर का ब्लॉकबस्टर जैसे नाम है. I think it's going to be fun and a lot of excitement, a lot of adrenaline rush. एक एडवेंचरस शो होगा जहाँ पे हमें डर भी लगेगा और डर को जीतना भी पड़ेगा क्योंकि डर के आगे जीत है. आई थिंक पर्सनली हर एक के ऊपर है, चाहे वो लड़का हो या लड़की. अगर माइंड आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, एंड इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी कितनी मसल्स हैं या कितनी बॉडी है या कितना आप भाग सकते हो, बिकॉज एंड ऑफ द डे फेयर जब आता है तो वो माइंड पे होता है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ऐसा करने का हर रोज़ हर किसी को मौका नहीं मिलता, तो मुझे जो मौका मिला है मैं इसको अपने आप को टेस्ट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि मेंटली कितनी स्ट्रेंथ है मेरी कैपेसिटी में ऐसे टास्क करने की. तो आई एम सुपर एक्साइटेड. देखिए, डांस भी कोई खतरों से खेलना कम नहीं है. जिस तरह का डांस हम करते हैं तो ये एक और उसका पहलू है, एक और लेवल अबव है, तो मैं ये भी डेफिनेटली करना चाहूँगा. तैयारियों में मैंने इसके जो प्रीवियस सीजन्स है, प्रीवियस एपिसोड्स है, वो सब देखा है. मेंटली खुद को बहुत प्रिपेयर किया है क्योंकि फिज़िकली खुद को उतना फिट करने का मौका मेरे पास था नहीं, ना ही टाइम था क्योंकि मैं शूट में बिज़ी थी. तो बस मैं मानती हूँ कि जो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ है वो उस चीज़ को कॉम्पनसेट कर लेगी. आई थिंक इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट क्योंकि हम सब एक ही वी आर ऑल फ्रॉम द सिमिलर और रादर द सेम इंडस्ट्री, एंड सबके सब इक्वल लेवल पे है यहाँ पर क्योंकि सबको सेम टास्क दिया जाने वाला है. तो मज़ा आएगा खुद स्टंट करने में भी और दूसरों को भी देखने में. बहुत से स्टंट्स किए हैं यार, ये पीछे से सबके लिए वो किए हैं. बॉडी डबल हो गया या कितने रेसल्स हो गए, सब मेकिंग की है हमने, सबके लिए बनाया है. अभी फर्स्ट टाइम हमको चांस मिला है हमारे लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है. जी, मूवीज़ के बीच में इनफैक्ट मैं एंट्री कर रहा हूँ खतरों के खिलाड़ी में, तो आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत टाइम से करना चाहता था. ऐसी आपको गेम्स खेलने को मिलती हैं, ऐसी टास्क करने को मिल सकती हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, और ऐसी जगह पे आप वो टास्क करेंगे, प्रोबेबली किसी पहाड़ पे या बिल्डिंग पे या आग के बीच में या दरिया के बीच में, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे. बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है कि हमें ये मौका मिल रहा है, एंड थैंक्स टू कलर्स एंड एंडेमॉल कि हमें एक साथ ये मिल रहा है मौका. दैट्स रियली एक्साइटिंग. ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा परफॉर्म करे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें भूलनी नहीं चाहिए कि वी वांट टू मेक द शो द मोस्ट एंटरटेनिंग शो जो आज तक नहीं हुआ है, इतना एंटरटेनिंग. सो ऑब्वियसली आई वांट देम टू परफॉर्म, एंड परफॉर्म करेंगे. मैं नेगेटिव सोचूँ ही क्यों, दे विल डेफिनेटली परफॉर्म एंड बहुत मज़ा आएगा. खाने का तो नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं. जिस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है वो पार्ट मैंने निकाल दिया है. जानवर होंगे ऑब्वियसली, बट बिकॉज इट्स अ 9 o'clock शो, सो वी डू वांट टू गेट इनटू दैट के के कीड़े खा रहे हैं एंड ऑल दैट, सो वी विल नॉट बी डूइंग दैट.
बट हाँ, बाकी जानवरों के साथ भी स्टंट्स हैं और उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। बट अगर मैंने अभी से बता दिया तो उनको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। बहुत सारे मिलेंगे आपको देखने इस तरह के स्टंट्स। डिज़ाइन कर रहे हैं हम लोग, पहले 2-3 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिया। मैं निकल रहा हूँ आज रात केप टाउन के लिए और वहाँ फिर उनकी टीम के साथ बैठूँगा और बाकी डिज़ाइन करूँगा स्टंट्स, क्योंकि स्टंट आर्टिस्ट नहीं है, सारे एक्टर्स हैं टेलीविज़न के और फिल्म्स के। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए रहेगी वो है उनकी सेफ्टी, यू नो। सो कोशिश यही रहेगी कि सब कुछ अच्छा हो और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी दुआ करें कि सब सेफ हो और अच्छे से हम ये शो करके वापस लौटें। नहीं, देखिए होता क्या है कि इनमें से तो करीबन 1 या 2 ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जो स्टंट के वक्त नहीं हुए हैं, शूट के दौरान हो गए हैं। सो वो जो हुआ है वो तो मेरा ऐसा मानना है कि वो किसी के साथ भी हो सकता है, यू नो। वी कांट ब्लेम द स्टंट आर्टिस्ट और वी कांट ब्लेम द टेक्निकल टीम फॉर दिस, क्योंकि एक हादसा हो गया, नहीं होना चाहिए था ऑब्वियसली, बट जो हुआ है इट्स नॉट बिकॉज ऑफ स्टंट, क्योंकि वहाँ स्टंट शूट हो ही नहीं रहा। बिकॉज मैंने काफ़ी स्टंट्स फिल्मों में, अपनी फिल्मों में, दूसरों की फिल्मों में डिज़ाइन किए हैं, तो इस बार स्टंट डिज़ाइन करने का मौका मिल रहा है। सो ऑब्वियसली कीपिंग द हिंदी ऑडियंस इन माइंड, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी जो जनता है जो 9 o'clock के स्लॉट में ये शो देखेगी, उनको दिमाग में रखते हुए और हमारे एक्टर्स को दिमाग में रखते हुए और स्टंट्स डिज़ाइन किए हैं। और जैसे आप पहले देखते थे 1 या 2 स्टंट, इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार ज़्यादा होंगे। नो, सी आई कांट कमेंट ऑन एनी अदर्स फिल्म, आई कैन ओनली से कि अप्स एंड डाउन्स सबकी लाइफ में आते हैं। सो इसका कोई इशू बनाने वाली बात है ही नहीं। मोर देन एक्साइटमेंट, यू नो, मेरे ख्याल से एक्साइटेड तो कभी होना ही नहीं चाहिए। यू शुड जस्ट वर्क ऑन इट, कि एक्साइटमेंट की जगह अगर आप मेहनत करें कि आप कैसे इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं, तो उस चीज़ पे हमने वर्क किया है। बाकी जब आप शो देखेंगे तो आप ही बताइए कितना अच्छा लग रहा है। आज देखा नहीं आपने इस तरह के होता क्या, हम लोग बिहाइंड द सीन रहते हैं तो पता नहीं चलता है कि व्हाट ऑल वी हैव डन और नॉट। फर्स्ट टाइम यू हैव सीन मी डूइंग दिस, बट फॉर अस इट इज़ लाइक ठीक है, इट वाज वन ऑफ द शूटिंग डेज फॉर अस। जो स्टंट्स हमने डिज़ाइन किए हैं वो ऑब्वियसली यू नो सेफ्टी प्रिकॉशंस, मतलब टेक्निकली कि होगा, रिस्क होगा, बट इस तरह का रिस्क नहीं हो कि कोई हर्ट हो जाए। वी हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ दैट एंड वी विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट। इंट्रोडक्शंस इन्होंने जैसे आज हमने किया, उस तरह के प्लान्स हैं, क्योंकि कुछ वैको स्टंट्स है जो शायद कहने से ऑडियंस को और जो हमारे खिलाड़ी हैं, कंटेस्टेंट्स हैं, उनको समझ में ना आए, तो वो परफॉर्म करके दिखाना होगा उनको। सो ऑल दोज थिंग्स विल हैपन। Welcome to Masala Buzz. We bring to you the latest happenings from the world of showbiz. Today's top stories are: Deepika Padukone has been expressing her desire to work with Salman Khan. After a fire destroyed Sridevi's home, she and her family are looking for a new place to stay. Rumors have been doing the rounds about Shruti Hassan being roped in for Gabbar. There were reports that Deepika Padukone has been roped in opposite Salman Khan in Suraj Barjatia's Next. But Deepika denied and said that's not true, and she has not even officially met Suraj. It's not just Deepika who is eager to work with the Dabangg Khan. In fact, he has also expressed his desire to work with her and has been seen praising her on many occasions. Deepika said it definitely feels great when Salman says such good things about her because he was the one who first noticed her. She was doing an ad with his friends in Rajasthan. So he noticed her first of all, and he was the one who offered her her first film. Deepika, during her modelling days, had got an acting offer from Salman before she was chosen for Shah Rukh starrer Om Shanti Om. However, the actor denied Salman's offer as she felt she was not ready to face the camera. Now, after acting with popular actors like Akshay Kumar, Saif Ali Khan, Ranbir Kapoor and Shah Rukh, Deepika wants to work with other superstars like Salman, Aamir Khan and Hrithik Roshan. Currently, Deepika has films like Happy New Year, Finding Fanny Fernandez and Imtiaz Ali's untitled film in her kitty.
घर में नहीं पढ़ सकते? तुम पढ़ाओगी मुझे इंग्लिश लिटरेचर? अरे वो अमेरिका है, तुम अंग्रेजी भी ठीक से नहीं जानती ना। Sridevi and hubby Boni Kapoor are on the hunt for a new home after their luxury apartment in Mumbai was destroyed in a blaze on Saturday 21st December. Sridevi was apparently getting ready for a party when her daughter Jahnavi raised the alarm when an air conditioning unit caught fire. The actress's mother-in-law, her other daughter Khushi and 2 pet dogs were also in the building when the blaze started, but they were all safely evacuated. According to the Deccan Chronicle, the family is now on the hunt for a new home after the ground floor of the property was ruined in the fire. Sridevi's business manager Pankaj Kharbanda said that luckily everyone managed to get out in time, but a whole floor has been burnt and they cannot live in the house. They stayed at a hotel on Saturday night and are deciding where to move now. The house is completely destroyed. A source tells us that Shruti Hassan has been roped in for Akshay Kumar's Gabbar. Not so long time ago, Shraddha Kapoor was asked to leave the star cast of the film as she couldn't accommodate dates. Since then, there were reports about Shruti being reconsidered for the film. Now we hear that the pretty girl has signed the dotted line. The actor will start shooting for Gabbar in January 2014. Before Shraddha Kapoor was finalized for the film, Shruti was approached for Gabbar. However, at that time, she couldn't give bulk dates. That's when Shraddha was brought in. However, Shraddha was asked to walk out for the same date issues, and yet again, the filmmakers approached Shruti. This time around, she has been finalized. This looks like the case where if that actress is meant to be for the film, things will work out, just like how things did work out for Shruti eventually. हाँ, मैं DID पे काफ़ी बार आ चुकी हूँ एंड आई थिंक टीवी एक बहुत अच्छा माध्यम बन गया है फिल्मों के इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि डायरेक्टली हम अपने फिल्मों के बारे में जो एक और तरीका है एंटरटेनमेंट का, उसको लोगों के बेडरूम्स तक ले जा सकते हैं, उनके घरों तक ले जा सकते हैं एंड ये एक बहुत अच्छा एमैल्गमेशन है मेरे हिसाब से और मुझे तो बहुत मज़ा आता है। स्पेशली दादा होते हैं यहाँ पे और इतने अनबिलीवेबली टैलेंटेड बच्चे जो होते हैं, जो इन दोनों को आज मैं दिखाने वाली हूँ। सुपर टैलेंटेड किड्स जो फुल कॉम्प्लेक्स दे देंगे आपको, आप उसके बाद कभी नहीं डांस कर पाएंगे क्योंकि ये बच्चों को देखने के बाद हमारा टैलेंट थोड़ा कम है, बहुत कम है बच्चों के कंपैरिजन में, बहुत। इसलिए गुंडे देखने आना। करेक्ट। कम वॉच सम कपल ऑफ अनटैलेंटेड गाइस। No, you'll see. पिक्चर में दम है, हमारा टैलेंट कम है। You see these kids and I'm telling you myself, they are shocking. Dancing तो shocking. It's Ranveer's personality. Just excited, boss. It has nothing to do with the film. It is Ranveer is excited. That's Ranveer's personality type. Can't help it. We apologize for his behavior. And this is his most. We are sorry that you have to be subjected to Ranveer. ये इनका सबसे subtle promotion campaign है अभी तक। जैसे आप देख सकते हैं कपड़े भी subtle हो चुके हैं। ये क्या हो गया अजीब, क्या हो गया? I think ये बहुत ही amazing album है। गुंडे का एल्बम हर सॉर्ट ऑफ इमोशन को केटर करता है, हर किस्म का गाना है इसमें। तो मुझे तो ये एल्बम अगर आपने गाड़ी पे लगा दो लूप में, मेरी गाड़ी में तो लूप में चल रहा है। क्या एल्बम है? आहा आहा ओहो
नहीं मतलब हर टाइप का गाना है ना वो। तूने मारी एंट्री थोड़ा सेलिब्रेटरी, थोड़ा हाई एनर्जी मस्ती वाला गाना है। अस्सलाम इश्कुम सेक्सी वाला गाना है। जिया वो प्यार मोहब्बत वाला गाना है। साइया वो प्यार मोहब्बत में ठोकर खाने वाला गाना है। और जश्न इश्क है, हीरो का इंट्रो वाला गाना, हीरो का इंट्रो। और वो गाना जिसमें तुमको रैपर की तरह नहीं लिया, वो गाना भी है। वो गाना है जो रणवीर डिसऑन करते रहते हैं बाद, टाइटल गाना भी है। गुंडे का भाई मुझे पहले तो डर लग रहा था कि चपेट ना पड़ जाए। प्रियंका चोपड़ा के साथ एक्टिंग करनी पड़ेगी। इतने अवार्ड जीते हैं, नेशनल अवार्ड जीता है, तो मेरी एक्चुअली बहुत फटी हुई थी। मैंने सोचा आई बेटर डू माई बेस्ट वरना मेरी कच्ची कट जाएगी। तो कोशिश की। अब देखते हैं फिल्म, आप देख के बताइए। जब आप लोग देखोगे तो बताने से कच्ची कटेगी नहीं। जी अगर आप एपिसोड देखेंगे तो वो उल्टा होगा। इन्होंने शूट अपने क्रोनोलॉजी के हिसाब से किया बिकॉज द परफॉर्मर हु वाज सपोज्ड टू डांस वाज ऑलरेडी रेडी एंड इट वुड बी रूड ऑन आवर पार्ट टू टेल हिम कि हम अपने गाने सेंड करेंगे। ये जो लीनियर में नहीं एक्चुअली लाइफ में जो ये भरत मिलाप हुआ ना इसी गाने पे हुआ। करेक्ट, स्पेशल सिग्निफिकेंस। तो राम लगन का गाना और ये इन लोगों का बैकग्राउंड स्कोर चलता है। जब ये चलते भी ना ऐसे तो वो गाना करेक्ट है, गुंडे के लिए भी करेक्ट है। दिमाग में यही गाना चल रहा होता है। अनिल चाचू भी जानते तो इसी गाने पे जाते हैं। No, but it's great to no, but it's amazing to see क्योंकि मैंने काफी 2 हीरो फिल्म्स की हैं and you know थोड़ा फर्क पता चलता है जब असली दोस्ती होती है, सिर्फ दिखावे की दोस्ती होती है। and इन लोगों की सच्ची में अच्छी दोस्ती है, you know, which is really nice to see, especially in a 2 hero film. I think it made the film for Ali also very easy. They are very very different people, Ranveer and Arjun. I think जो कैरेक्टर्स ये फिल्म में प्ले कर रहे हैं उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट्स हैं। You know, Ranveer is very sort of instinctive and जो दिमाग में आता है वही कर देता है। Arjun is a lot more थोड़े स्थिर हैं, थोड़ा सोचते हैं, but at the same time they both know how to have a lot of fun. So I think they meet on the music of the 90s. Thank you guys. दूध तो दे बेटा, दूध निकाल लिया, अभी क्या बाकी भी निकाल। चलो चलो ट्राई तो करो। समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है। चलो फिर अभी क्या बजाना है इसको? हाँ बजाना है, जरा बजाना। Yes, 1 मार्च से DID लिटिल मास्टर। लेकिन आप
बच्चागिरी। दादा का बच्चे की वाइफ क्या टफ कॉम्पिटिशन है? बच्चागिरी का मतलब कि ये वो बच्चे हैं जो जानते हैं उन्हें क्या करना है, किस तरह अपने आप को पेश करना है। इसका मतलब नहीं दे आर ओवर स्मार्ट किड्स, बट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। सब कॉन्फिडेंट लोग हैं, बच्चे हैं। और मुझे यकीन है इस बार ये बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। मेरे क्लास ले रहे हैं, मतलब सपने में भी आ रहे हैं कि गला दबा रहा है। मेरे कहने का मतलब इट्स गोइंग टू बी अ फन शो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली जैसे मैंने कहा, ये आज वो बच्चे हैं जो समझते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और कैसे आगे ये अपना कदम आगे बढ़ाना है। जैसे बट अंडरलाइन करूँगा कि दैट डजंट मीन दे आर ओवर स्मार्ट किड्स, दे आर नॉट ओवर स्मार्ट, दे नो व्हाट एग्जैक्टली व्हाट दे हैव टू डू। आई थिंक टीवी हैज रीच्ड एवरी होम। टीवी एक वो मीडियम है आज की तारीख में जो मुझे लगता है कि आपके बॉर्डर में भी घर में आप टीवी चलाएंगे तो देखेंगे, दिखाई देगा। तो व्हेन द टीआरपी इज गुड सो वी मस्ट कैश ऑन इट। आप अब हर घर में पहुंच जाते हैं। और प्रमोशन की बात करें, इससे बढ़िया प्रमोशन और क्या है। पहले तो हम लोग पोस्टर लगाते, शहर शहर घूमते थे, अभी घूमते हैं, लेकिन आई थिंक दिस इज बेटर वे टू डू इट। बहुत ज़्यादा बर्डन है, हर साल हर सीज़न ऐसा लगता है कि और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपको पिछले से और अच्छा करना होता है। कोशिश करता रहता हूँ किस तरह इसको ड्राइव करके मंजिल तक लेके जाना है। और सिर्फ मैं नहीं, सभी मेरे साथ हैं, सभी कोशिश करते हैं कि जगह जुट के हम लोग किस तरह से इसको आगे ले जाएं। किस एक्टर बोलना सही नहीं होगा। रिकॉर्ड्स इन द सेंस, देखिए अगर नाप तोले उस समय अगर 3 करोड़ कोई स्टेट में फिल्म हो तो दैट वाज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू टुडेस 30 करोड़। तो उस हिसाब से अगर देखें तो बैलेंस ठीक है। खाली वैल्यू ऑफ मनी जब मतलब उस तरह से तोले तो 100 करोड़ इज ए बिग मनी, बट उस समय हमारे लिए भी 3 करोड़ इट वाज अ बिग मनी।